Hello everyone. Today we have with us Dr. Akram Ahmad sir, a PhD in the field of medicine and science from University of Sydney. He has more than 10 years of teaching experience with 110 papers published. So he is the best guide for us in research and in education. He also is the CEO of Academically.ai, which is basically going to guide us and open our career paths in moving to Australia. We welcome you, sir, on Abhijit Archives. How are you, sir? Thank you, Abhijit. So my name is Dr. Akram Ahmed. So I'm basically a lecturer for medicine. So I teach basically pharmacy, nursing, and medicinal student pharmacology in Australia. And I'm also guiding the healthcare professionals to migrate Australia, New Zealand, UK, US, wherever you want to go. So as a medical doctors, you need to write Australian Medical Council exam. So I will give you the full information here to that at really you can make your decision which country is best for you, because the Indians only know about the USMLE for US and for PLAB for UK. So very little knowledge available, basically awareness among the Indian community, especially about the Australian Medical Council exam. So, sir, first things first, I want to know from you why Australia? When there's USA, there's UK, there's some people go to Canada. Why are you suggesting Australia as a career path for us medical students? Because we all know that India may or may not have that many options, but still, why Australia? So basically, whenever you are thinking to migrate to any other country apart from India, so you have to see the three important points. The first important point, the examination, how easily you can crack this exam, a very tough exam. So if we compare with like a USMLE or PLAB for UK, so this is AMC exam is very easy exam and the passing rate is very high. Okay. Secondly, you have to see that the visa easily you can get for which country, and thirdly, the how much time will it take to give you a permanent residency or citizenship if you want to settle there, or if you want to do a PG in that particular country, for example, US, UK, or Australia. In these three parameters we compare, so Australia is the best country for you to migrate. So very easy migration for Australia, and exam also very easy, and there is a lot of jobs are available, and a lot of Indians are available, working in Australia. And currently the relationship with India and Australia is very good, as our PM also went 2-3 times in Australia, and even Australian PM came two times for India. So you can see between the chemistry in India and Australia. Yes, sir. Yes, sir. So there's easy exam, easy visa, and less time. But I wish to know more about the country, about the medical opportunities that we can get after MBBS in Australia. Can you tell us more about the medical and research ideas and colleges in Australia? Yes, so for Australia, basically, if you want to migrate, if you want to work in Australia as a GP, or you want to do a specialization, for example, after your MBBS, so there is certain conditions, basically, like the eligibility. Basically, eligibility is that anyone completed MBBS from India, they are eligible to sit in this exam called Australian Medical Council exam. Even someone did MBBS from other country like the Philippines, Russia, China, and they failed that FMG exam in India, so they are not, because the exam is very tough. The passing rate around 20 to 25% only, this FMG exam in India. Okay, so if you failed also, still you can practice in Australia, you can write this AMC exam. So simple eligibility, if your college, your university name in the Australian Medical Council name is there, then you can write, but most likely name will be there. Okay, so there is a 4 steps you need to complete. The first step, document verification. So they will just check your degree from XYZ university in India or abroad, and then they will also check your registration. If you completed your MBBS from India, and you must be RMP in any state medical council. Okay, and that's what the thing they will check, like a passport, Aadhaar card, photograph, like normal thing. So there are 2 steps, and we will complete behalf of you. You just need to provide us your document. We will come, and you also can do yourself. It's not a very tough task. You can do yourself, and we also can help you to complete your document verification, and it may take around 2 weeks to complete this process. Okay, and then you need to write this exam called Australian Medical Council MCQ exam. So there's a multiple choice question they will give you, and there is so many centers in India currently, around 15 exam centers in India currently available. Okay, like in Delhi, we have in Noida, Gurgaon, Chandigarh, and we have 2-3 in Punjab, in Haryana. Then we have, we have a lot of centers. So you just need to go to center and write the exam. And this exam is the advantage. You can write this exam monthly.
there is a 10 dates are available. Now you asked me a previous question that sir के ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज करें? अगर यूके जाना है तो 2 साल पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है एडवांस में यूके के लिए, है ना? तो करंटली 2025 के लिए बुकिंग चल रही है यूके में, है ना? यहाँ क्या हो रहा है कि आप जब भी आप कॉन्फिडेंट हो एग्जाम में बैठने के लिए, यू कैन बुक योर एग्जाम, यू कैन सिट इन द एग्जाम, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू फेल नेक्स्ट मंथ यू कैन राइट, बट देयर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम in case of UK in US. Sir, how many attempts are available for AMC exam that you Yes, mentioned? this is very good question. So this is like unlimited attempt in Australia. So there is not a limited attempt like first attempt, second attempt, or 3 attempt. If you fail, you cannot write the exam. But basically, we provide the coaching for 4 months from Australia online. We have a Indian doctors. They completed their MBBS, MD in India, and they went with the same journey. Now they are practicing in Australia. Okay, so they are going to be teach for this course, the 4-month course. So document verification we will do. Then we will provide this MCQ based coaching for you. Then you need to write one English test like IELTS or PTE. We will also provide you the coaching for this exam also, okay? OET or PT or IELTS, any exam you can give. After that, the advantage in Australia, only part 1 if you can pass, you can get a job in Australia. But in case of UK and US, you cannot. Okay, you have to complete their part 2 and part 3 USMLE for the US, right? So after this, you can work as a JMO, junior medical officer. Means that आफ्टर, जैसे अपने इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, तो एमबीबीएस के बाद में जब आप इंटर्नशिप करते हो, जैसे आप वर्क करते हो जैसे CRRI, राइट, तो उसमें आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होती है आपकी बेसिकली कि आप किसी एक डॉक्टर के अंडर में वर्क करते हो वहां पर, या कोई पीजी डॉक्टर है उसके अंडर में आप लोग करते हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन राइट आपके पास नहीं होता क्योंकि आपने अभी RM रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपका इन इंडिया में। तो सेम ऑस्ट्रेलिया में ये है कि JMO आप जॉब कर सकते हो और ये गवर्नमेंट हायर करती है इसमें, और अराउंड $70,000 इसमें आपको सैलरी मिलती है पर ईयर। तो अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग तो करीब 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे व्हाइल यू आर इन ट्रेनिंग इटसेल्फ। और इसके बाद में फिर आपको पार्ट 2 क्लियर करना होता है, AMC पार्ट 2, वो क्लिनिकल एग्जाम होता है। और अगर आपने पार्ट 2 क्लियर कर लिया तो फिर यही फिर आपको रेजिडेंसी करनी पड़ती है यहाँ पर, या हाउसमैनशिप उसको बोल सकते हैं, और उसमें सैलरी मिलती है अराउंड $130,000। तो इफ वी कन्वर्ट इंडियन रुपीस मे बी अराउंड 60 to 70 लाख इंडियन रुपीस। So document verification, then AMC1 exam, which is an MCQ exam, which is easier than FMG exam. Then there is 1 year of internship sort of thing in Australia, which is also a paid internship. Then there will be an AMC2 exam, which is a practical exam. This is a little bit confusion. After part 1, this is not mandated to do internship. Okay. अगर आपको करना है, मैंने ऑप्शन दिया है, दिस इज द बेस्ट थिंग आपको कि आपने AMC पास किया, आपका जॉब है बेसिकली, ये आपको जॉब मिल गई और साथ में आप प्रिपेयर करते रहो AMC2। जो मैंडेटरी इंटर्नशिप है वो होती है आफ्टर AMC पार्ट 2, 1 ईयर की जो होती है वो मैंडेटरी है। आफ्टर AMC पार्ट 2 जो पार्ट 1 की बात करोगे वो मैंडेटरी नहीं है, पर वो बेस्ट है ओवरसीज क्वालिफाइड डॉक्टर के लिए कि आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ प्रैक्टिस करते रहो, वहाँ के ऑब्जर्व करो वहाँ प्रैक्टिस कैसे हो रही है, तो आपके लिए ईजी रहेगा पार्ट 2 क्लियर करना। ओके, सो AMC1 के बाद का जो 1 ईयर है, इट इज जस्ट फॉर आवर ओन प्रैक्टिस, एंड देन वी कैन क्लियर AMC पार्ट 2, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू जॉइन अ कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप। देन एडवांटेज मैं बता के आता हूँ यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, पहले क्या था ऑस्ट्रेलिया में, पार्ट 1 यू कैन राइट इन द होम कंट्री, फॉर पार्ट 2 यू नीड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस वहाँ पर एक मेलबर्न सिटी है, वहाँ मेलबर्न जाकर आपको एग्जाम लिखना पड़ता है, क्लिनिकल एग्जाम। अभी क्या कर दिया कोविड के बाद से, ये पार्ट 2 भी यू कैन राइट फ्रॉम योर होम कंट्री। जैसे प्लैब 2 के लिए आपको यूके जाना है, सेम फॉर US है ना, जाकर कंप्लीट करना है पार्ट 3। तो ऐसे ही क्या है क्लिनिकल एग्जाम में अभी ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया कि आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज चली, इनको डॉक्टर्स चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको प्रोसेस को थोड़ा सा लीनियर किया है, इजी किया है कि भाई आप अपने होम कंट्री से ही पास कर लो पार्ट 2 और डायरेक्टली आप रेजिडेंसी ढूंढ के आप यहाँ पे डायरेक्टली आप जॉब पे यहाँ पे आ जाओ। ओके, सो नाउअडेज हम AMC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंडिया से ही दे सकते हैं। यस, एंड उन दोनों के बीच में कंपलसरी 1 ईयर ऑफ डिफरेंस होना चाहिए कि हम कैन वी गिव इट अ बिट मोर क्विकली? यस, बेसिकली ये एक कंफ्यूजन रहता है कि कुछ टाइम का कुछ गैप होना जरूरी है क्या। तो जैसे ही आप पार्ट 1 पास करेंगे तो जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है वो आपको ईमेल करते हैं, बताते रहेंगे कि भाई इस मंथ में ये डेट है, ये डेट में आप एनी टाइम आप बुक कर सकते हो। बेसिकली अब आपको पार्ट 2 में कुछ टाइम चाहिए प्रिपरेशन का, तो मैं कहूंगा कि विद इन 3 मंथ या 4 मंथ में आप फिर से बैठ जाओ पार्ट 2 के लिए, ज्यादा वेट मत करो, है ना। क्योंकि जैसे ही आपने पार्ट 2 क्लियर कर लिया, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल
आपको पीजी करना है ऑस्ट्रेलिया में या आपको जीपी बनना है, जॉब करनी है, तो आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि आपको तो सर 1 साल में प्रिपरेशन कर लूँ और उसके बाद मैं फिर AMC2 दूंगा। So part 2 के बाद क्या सर? Part 2 के बाद we can do both GP practicing and is there any PG exam? Let's just say कि I'm a medical student from India and I want to do my post graduation from Australia. I don't want to do general practice. Then what for that? यस, मैक्सिमम लोग यही ड्रीम लेके जाते हैं, मगर जीपी को ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे मिलते हैं कि लोग फिर उधर नहीं जाते। जीपी में ही अराउंड में 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर ईयर का अर्निंग हो जाता है। तो लोग, पर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे ही आपने पार्ट 2 क्लियर किया, आपने 1 साल की रेजिडेंसी की, जब आप फाइनल 2-3 महीने लास्ट में बचेंगे, उस टाइम पे अगर आपको पीजी करना है या आपको जीपी पे जाना है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम तक कि आपको करना क्या है। मतलब आपको अगर पीजी करना है तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल होते हैं, स्पेसिफिक स्कूल होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन गायनी में जाना है या आपको पेडियाट्रिक में करना है या आपको सर्जरी में करना है, तो यहाँ पर जो एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक स्कूल होगा वो कंडक्ट कराएगा। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि वो प्रीवियस आपका सीवी है और जो आपका एक्सपीरियंस है और प्लस आपका जो है ना, इसकी बेस पे बेसिकली वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसकी बेस पे वो लोग पीजी देते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं So है there is no exam. या वैसे नीट पीजी होता है, तो उस टाइप का वहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है, तो थोड़ा सा फाइटिंग करनी पड़ती है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस पहले से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने MBBS किया और आपने इंडिया में 1 साल जॉब किया, या किसी ने पीजी किया इंडिया में, ऑलरेडी इंटरनल मेडिसिन में कोई किया है या सर्जरी में किया, उनको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा, उनको पहला जो है मिल जाएगा वो। So the stronger the CV, the better the chances. But exam वगैरह कुछ नहीं है. नहीं, जनरली वो और लोग PG, चूज okay. करते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है, उसकी बेस पे फिर वो कुछ यूनिवर्सिटीज अपना ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कुछ एम्स है, अभी एम्स अपना ही कुछ क्राइटेरिया बना दे कि भाई मेरे यहाँ पर जो आएगा मैं उसका एंट्रेंस लूंगा, है ना। या कुछ BHU फॉर एग्जाम्पल, ये AMU इंडिया है ना, इन लोग का अपना ही कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया है, ये लोग ले सकते हैं अपना टेस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है जो टॉप यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, अब जो पहला मेडिकल स्कूल था ऑस्ट्रेलिया का, वो सिडनी मेडिकल स्कूल में बनाया गया था वो 1849 में, क्योंकि मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हूँ, तो मैं उसी फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। तो वो लोग लेते हैं क्योंकि वो बहुत टॉप पर है। पर कुछ और भी मीडियोकर यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। Okay, so basically document verification, AMC1, फिर 4 महीने का प्रैक्टिस, I mean एग्जाम के लिए पढ़ाई, देन AMC2, उसके बाद हम कॉलेज स्पेसिफिक इंटरव्यूज आप इमीडिएटली बुक कर सकते हो। दिस इज अप टू ओके देन उसके बाद इंटरव्यू देना होगा एंड देन वी कैन गो एंड डू आवर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो दिस होल ब्रैकेट, इसमें एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर कितना आएगा? एक क्वेश्चन और रह गया कि ये जो पीजी ऑस्ट्रेलिया में कितने साल की होती है? जैसे इंडिया में अपने यहाँ 3 साल की होती है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में पीजी 4 साल की होती है, पर उसमें वो 1 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्जरी में गए या आप इंटरनल मेडिसिन में गए, तो 3 साल तो जनरल वो रहेगी प्रैक्टिस आपकी, और 1 साल में लास्ट में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं डायबिटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ या कुछ कार्डियक का, है ना, तो ऐसे वो 1 साल फिर सुपर स्पेशलाइजेशन में आप लोग थे। तो ऐसे पीजी ऑस्ट्रेलिया में जनरली 4 इयर्स का होता है, नॉट 3 इयर्स। ओके, सो वी कम आउट एज अ सुपर स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट? यस, मतलब स्पेशलिस्ट बन के ही वापस आते हैं। यस यस। सो वो डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज होगी क्या? यस, डेफिनेटली। क्योंकि लेट्स जस्ट मैं अगर वहां से आया एंड आई डोंट वांट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू कम बैक टू इंडिया, तो विल इट अफेक्ट एनीथिंग? यस यस। तो बेसिकली इंडिया में क्या है, बहुत सारी जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, वहां अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, डायरेक्टली इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन करते हो। इवन फॉर एग्जांपल किसी ने रशिया चाइना से MBBS किया, अब उसने FMG इंडिया में पास ही नहीं किया और डायरेक्टली वो चला गया ऑस्ट्रेलिया में, उसने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया अपना, और वहां पर वो RMP बन गया ऑस्ट्रेलिया में, या वो स्पेशलिस्ट बन गया ऑस्ट्रेलिया में। अब उसको बैक इंडिया में आना है, राइट। तो इंडिया में जो अपना बोर्ड है वो डायरेक्टली उसको कर लेगा, क्योंकि US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन है। अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ के लिए शायद फिर से आपको इनका कुछ एंट्रेंस होगा इंडिया में, वो करना पड़ेगा। मगर जो हाई इनकम कंट्रीज है, यहाँ पर डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बैक टू इन इंडिया। ओके, सो देयर इज नो फर्दर एग्जाम इफ यू आर अ PG फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज वेल। यस, बेसिकली अभी तो आपने सुना होगा एक अभी डिग्रीज का अभी जो वो चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, कि वो वेरिफिकेशन मतलब बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इक्विवेलेंसी हो जाए, कोई भी इंडिया की डिग्री है ऑस्ट्रेलिया में वैलिड रहेगी और ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में रहेगी। तो उस पर भी वर्क चल रहा है, और ये रिसेंटली जब हमारे ऑस्ट्रेलिया के PM इंडिया में आए थे तो ये अनाउंसमेंट हुआ था, अगर आपने देखा भी हो तो डिग्री की इक्विवेलेंसी वाली बात चल रही है। वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा, तो कुछ भी इंडिया में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। राइट सर, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंटिल क्लियरिंग द कॉलेज इंटरव्यू, इस फेज में टोटल एक्सपेंडिचर
कितना होगा? Yes, लाइक फॉर basically- यूएसएमएल ये अराउंड 20-25 लाख जाता है, नहीं, नहीं, यूके नहीं। के लिए 6 to 8 लाख जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस एएमसी पार्ट 1 प्लस इंग्लिश, ये 3 की मैं जर्नी बताऊं आपको, हार्डली आपके 5 लाख रुपए खर्च होंगे, इंक्लूडिंग एकेडमिकली फीस, मतलब जो भी हम कोचिंग कराएंगे आपको 4 मंथ की, तो हार्डली उसमें 4.5 से 5 लाख के आसपास में आपका खर्चा होगा। और उसमें से आप मैक्सिमम जो भी पैसे दे रहे हो आप, वो गवर्नमेंट को ही फीस दे रहे हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीस होती है अराउंड $1,000, ठीक है। और फिर आप एएमसी एग्जाम लिखते हो, उसी की फीस होती है अराउंड $3,000, ठीक है। और फिर आप इंग्लिश का अगर आपको देना है तो उसकी भी $300-400 होती है ना। तो मैक्सिमम जो फीस आप उन्हीं को नहीं दे रहे हो, तो हार्डली 4 से 5 लाख का टोटल आपका खर्चा आएगा। So 4 to 5 lakh में we can practice as a junior resident in Australia यस, और and then जितने start आपने our earning. खर्चा किया है आपको ये 2 महीने में आप बराबर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ही आपको 3-3.5 लाख सैलरी मिलती है अगर आप जूनियर मेडिकल ऑफिसर की आपको जॉब मिल जाती है वहाँ। जूनियर मेडिकल ऑफिसर, राइट? तो आपने एग्जाम का बताया, आपने फीस बताई विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। देयर इज नो अदर एग्जाम फॉर पीजी, देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। इतना सब सही है ऑस्ट्रेलिया में, देन स्टिल व्हाई आर मेडिकल स्टूडेंट्स और एमबीबीएस ग्रेजुएट्स नॉट प्रेफरिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, और इज इट द लैक ऑफ नॉलेज दैट दे हैव? लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास अगर 100 इंक्वायरीज आती हैं तो हम पूछते हैं उनसे कि भाई, उनको पता ही नहीं होती है कि भाई ये भी कोई एग्जाम है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ना। और लोगों को एक और लगता है बहुत ही टफ एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं। एएमसी जो पार्ट 1 है उसका जो पासिंग रेट है एवरी ईयर, क्योंकि एक साल में 10 बार तो एग्जाम होता है, हर महीने एग्जाम लिख सकते हो आप, है ना। तो उसका 60 to 80% पासिंग रेट है उसका पार्ट 1 का। अब आप लगा लीजिए कि पीजी जो अपना नीट पीजी है उसमें कितने डॉक्टर पास करते हैं। 80% तो डेफिनेटली नहीं होंगे, उनको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। मोस्टली बहुत सारे लोगों को जो है नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलती है इंडिया के अंदर भी, राइट। लोग 2-3 साल लगाए थे उस नीट पीजी को क्लियर करने के लिए। सर इसके आगे आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे यूएसएमएलई पीपल गो देयर बिकॉज दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड दे गेट क्वाइट अ लॉट ऑफ रिसर्च ग्रांट। फॉर यूके दे गो बिकॉज दे गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन अ लॉट ऑफ न्यू मेडिकल प्रोसीजर्स। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ है क्या? यस, ऑस्ट्रेलिया में तो मैं कहूंगा यहाँ पे सीएमई होती रहती है हमेशा। तो अगर आप वंस यू आर इन सिस्टम, और अगर फॉर एग्जांपल कुछ ईसीजी का कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आया, फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्कशॉप करनी है अटेंड, हॉस्पिटल विल पे योर रजिस्ट्रेशन फीस, आपको जाने का। एक साल में शायद 2 बार ऐसा होता है कि भाई वो बोलते हैं कि आप जाओ अपग्रेड करो अपने आप को, है ना। तो ये जहाँ पर बहुत ज्यादा चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मैं बेसिकली एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, उसका नाम है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वेस्टमीड। ये बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, इज लाइक इंडिया में अगर हम एम्स दिल्ली बोले तो उस टाइप का हॉस्पिटल है। सारे रेफरेंस यहाँ पर आते हैं पूरे न्यू साउथ वेल्स स्टेट के, और हमारा जो कैपिटल है वो सिडनी में ये हॉस्पिटल है, ठीक है। तो मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो वहाँ पर आप लगा लीजिए कि अगर बर्न जो होता है ना, तो उसके लिए एक स्कैन करने के लिए एक मशीन हमने अभी बाय की थी, LDI उसको मशीन का नाम है। उसका करीब $1.5 मिलियन हमने पे किया है, तो यानी 8 करोड़ रुपीस करीब इंडियन रुपीस में हो जाएगा। और इंडिया में तो शायद हार्डली कोई यूज करता हो, मुझे लगता है शायद एम्स वगैरह में हो तो हो या पीजीआई में, मुझे नहीं लगता कोई उस मशीन को बाय करेगा जनरली। तो आप देखो यहाँ पर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी कोई भी चीज इमीडिएटली जो है यहाँ पर उसको बाय किया जाता है। तो आप इट्स नॉट जस्ट कि आप वहाँ जा रहे हो पीजी करने के लिए, आपको बहुत, या आप खाली जॉब करने में जा रहे हो, बहुत सारी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको मिलेंगी वहाँ पर। अपग्रेडेशन करने का आपको बहुत ज्यादा चांस मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एज ए डॉक्टर आपको लाइफ और वर्क में बैलेंस नहीं होता इंडिया के अंदर। पता नहीं आपको 15 घंटे काम करना पड़ता है, 16 घंटे काम करना पड़ता है ना। आप स्पेशली अगर आप पीजी है ना, और यहाँ पर पेशेंट आपने कुछ हो गया, गाली बकने लगता है, मारने लगता है, ये बहुत ही कॉमन इंडिया में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ 8 आवर्स वर्क करना होता है, और वो भी फुल्ली सिक्योरिटी के साथ में, है ना। कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता आपको यहाँ पर ना, कोई भी डॉक्टर साथ में ऐसा। तो यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं डॉक्टर्स के लिए। तो दूसरे एडवांटेजेस भी आप देखो, इज नॉट जस्ट द मनी। आप पीजी करने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, या अगर आप कंपेयर करो ना, अगर आप 3 कंट्री को मस्ट कंपेयर करो, बेसिकली 4 कंट्री को आप कंपेयर करना चाहिए आपको अगर आपको मूव करना है। यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 हाई इनकम कंट्रीज में आपको कंपेयर करके फिर आप जाओ। अब यूके में अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है, पीआर लेना है, आपको 8 साल लग जाएंगे, 8 ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही आपने ये पार्ट 2 क्लियर किया, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, आप डायरेक्टली पीआर कर सकते हो अप्लाई। आप पीआर मिलने के बाद मोस्टली जितने डॉक्टर्स होते हैं उनकी मैरिड हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप फैमिली के साथ में अगर आप मूव करते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका जो स्पाउस है
उनको फुल वर्क राइट रहता है काम करने का, वो कुछ भी जॉब कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंडली जो आपके किड्स होते हैं उनको फ्री एजुकेशन होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फ्री जो है यहाँ पर जो है मतलब हेल्थ केयर है। अगर आप यूएस में जाते हो तो आपको मतलब इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है, कनाडा में भी आपको इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है, तो यहाँ पर फ्री है बेसिकली यूनिवर्सल कवरेज जो होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बहुत सारे दूसरे एडवांटेज है, पर मैं समझता हूँ कि मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है हमारे इंडियन कम्युनिटी के अंदर के लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोई एक ऑप्शन है। सर आपने इतने सारे एडवांटेजेस बताए हैं. आई हैव अ डाउट इन माई माइंड. इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी फॉर इंडियंस अमंग ऑस्ट्रेलियंस, लाइक सम काइंड ऑफ रेसिज्म, सम काइंड ऑफ आई डोंट नो इनर इनजस्टिस, ऐसे कुछ है क्या वहाँ पे कि ऐसे लोग इश्यूज सहन सोचते करने हैं पड़े कि हम शायद मिडिल कुछ को? साल पहले अगर आपने देखा होगा न्यूज में कि बहुत सारे के इंडियंस को मार रहे हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। अब वहाँ क्या होता है कि एक इंसिडेंट भी हो गया ना, किसी ने आपको गाली बक दी है, वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा वहां पर, है ना। अब इंडिया में तो पता नहीं दिल्ली के अंदर ही कितने मर्डर हो जाते होंगे, दिल्ली की चोरी हो जाती होंगी, है ना, रेप हो जाते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे बहुत सारे लोग। तो वहाँ बहुत ही एडवांस कंट्री में ये एक प्रॉब्लम है, पर ऐसा मैंने कहीं फील नहीं किया। मेरे पूरे डिपार्टमेंट में मैं अकेला इंडियन बंदा जॉब करता हूँ, और मेरा जो बॉस है एंड्रयू हॉलैंड, वो यूके ग्रेजुएट है वो, ठीक है। सारे गोरे लोग काम करते, हाँ नर्सिंग वगैरह में बहुत सारे इंडियंस हैं जो स्टाफ है, बाकी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं सारे हैं, यस। और जो तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं होता है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो इंडिया में कोई भी एज ए मेडिकल डॉक्टर ही, एडवर्टीजमेंट आएगी, फिर जो है रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, वो 6 महीने उसी में लगा देते हैं, पता नहीं कौन सी जॉब दे रहे हैं वो, सैलरी इतनी कम देते हैं तो यहाँ पर, है ना। क्योंकि गाँव में आपकी पोस्टिंग होती है यहाँ पर एमबीबीएस के बाद में। ऑस्ट्रेलिया में विद इन 4 वीक में आपका पूरा काम हो जाएगा, वो आपको बता देगा आपके यहाँ पर जो है आपकी प्लेसमेंट होगी, आपको यहाँ जाके जॉब करनी है। सिंपल सा एक इंटरव्यू करते हैं कंडक्ट, उसके बाद आपको फुल आपको जॉब मिल जाती है। इतना लंबा प्रोसीजर वहाँ होता ही नहीं है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे जो हेड है सर्जरी के थॉमस गॉर्डन सर है, वो इंडियन है, केरला से, है ना। तो इतने इंडियंस हैं बेसिकली आज की डेट में मेडिकल फील्ड में और इंजीनियरिंग में, आप कहीं भी जाओगे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। यस, मेडिकल डॉक्टर अभी इतने नहीं मिल रहे हैं, और अपने से जाए तो ये पाकिस्तानी आ जा रहा है यहाँ पर। सॉरी मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी वीडियो को बात करें, क्यों मतलब वो तो छोटा कंट्री है, हमारे यूपी के बराबरी कंट्री उनका पॉपुलेशन है, उन बहुत सारे लोग डॉक्टर वो लोग मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि उन लोग को अवेयरनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन को ओनली लगता है कि बस यूएस और यूके। तो आप डेफिनेटली आप कंपेयर करो इन तीनों कंट्रीज में, और फिर आपको डिसीजन लें आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपके लिए बेस्ट है। Also, I wanted to ask a question. How about the research opportunities? कि आगे ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं इंडियंस के लिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन किया आपने। अभी एक रिसर्च फेलो का एक हमारे पास में एक पोजीशन है, मेरे अपने डिपार्टमेंट में, मेरे अंडर में ही है। हमने ऐड किया हुआ है, पिछले 1.5 महीने से हम लोग ऐड कर रहे हैं, हमें बंदा नहीं मिल रहा। अब उसकी हमें कुछ चाहिए क्या, बेसिकली एक निगेटिव प्रेशर थेरेपी होती है जो बर्न जो पेशेंट होते हैं उसके लिए। हम ढूंढ रहे हैं कोई भी एक डॉक्टर हो जिसने एमबीबीएस किया हुआ हो और वो रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, तो हमको बंदा नहीं मिल रहा है वहाँ पर। तो एक प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जितने मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो क्लिनिकल फेज में जा जाते हैं, रिसर्च में कोई जाना नहीं चाहता है। जो नॉन क्लिनिकल वाले जैसे कि फार्माकोलॉजी वाले या कम्युनिटी मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं, एंटोमी फिजियोलॉजी, ये लोग रिसर्च करते हैं ज्यादातर इंडिया के अंदर। पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आपको जो है, अपार्ट फ्रॉम आप क्लिनिकल जो भी आपका ब्रांच है उसमें आपको रिसर्च करने का आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा, पूरी ग्रांट मिलती है आपको। अगर आप पीजी आप कर रहे हो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना आपको मैंडेटरी होता है, आपको एक पैसे मिलेगा उसको नहीं है। और फिर आप कोई प्रेजेंट करने जाते हो किसी कॉन्फ्रेंस में, उसका पैसा मिलता है। पब्लिकेशन करनी है आपको, उसकी भी फीस जो है वही इंस्टीट्यूट आपको जो है बेयर करता है। तो इंडिपेंडेंटली, जैसे मेरे जो डॉक्टर हैं बेसिकली डॉक्टर एंड्रयू हॉलैंड, वो एक सर्जन है, बहुत ही फेमस सर्जन है वो जो है बर्न के ऑस्ट्रेलिया में, और उनके अंडर में बहुत सारी ग्रांट्स रहती हैं। मैं भी एक ग्रांट पे, मैं बेसिकली वैसे तो मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, पर जो हमने जो ऐड दिया हुआ है ये ग्रांट के लिए दिया हुआ है 3 साल के लिए। तो बहुत सारी वहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट देती रहती है। वो जो रिसर्च को बेसिकली जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर एनकरेज किया जाता है कि आप रिसर्च भी करो, ये भी एक आपकी जॉब का पार्ट होता है। बेसिकली 70 to 30, 80 to 20% ऐसा रहता है कि 20% आपको रिसर्च करना मस्ट रहता है अगर आपको अपग्रेड करना है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है रिसर्च के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। Okay, and for all the postgraduates watching this video, are there any fellowship opportunities in Australia? कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है जैसे सर्जरी में, उसके आगे मुझे सीखना है, so are there any opportunities for that? Yes, मैं अभी रिसेंटली डॉक्टर से मिला था, वो श्रीलंकन डॉक्टर था, और वो जो है स्पेशलिस्ट था बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ना। तो ऐसे शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हो लाइक 6 months 1 year आपको अगर अपग्रेड करना है और फिर आपको वापस इंडिया आना है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, पर थोड़ा सा कम रहती है। उसमें क्या होता है,
इसमें कंपटीशन हाई हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं यूके से, उल्टा माइग्रेशन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो न्यूजीलैंड से, यूएस से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो आपका कंपटीशन है अराउंड द वर्ल्ड, आपको बहुत सारे आपको कंपटीशन बढ़ जाती है उस केस में। मगर इंडियंस की एक रेपुटेशन बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो इंडियंस को भी बहुत प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है, नॉट जस्ट ए फ्रेश एज पीजी, पर आपने एटलीस्ट 1-2 साल जॉब किया है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्जरी में एमएस किया, 2-3 साल आपने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप, है ना, या इंटरनल मेडिसिन में आपने किया एमडी, और आपने कोई आप डायबिटीज पे या आप जो हाइपरटेंशन पे किसी पे करना चाहते हो, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। पर जो फ्रेशर रहेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप ये इसी पाथवे पे, आप एएमसी वाले पाथवे पे आप जाओगे। और एक बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 पाथवे होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड पाथवे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन AMC 1 AMC 2 पाथवे पे जाना है। एक होता है वहाँ पर स्पेशलिस्ट पाथवे, तो जिसने ऑलरेडी एमडी या एमएस अपने होम कंट्री में पास कर लिया है, उसके लिए होता है वो। पर ये प्रैक्टिक मतलब थ्योरेटिकली तो वो लोग बोलते हैं कोई भी पीजी के हुआ अप्लाई कर सकता है, बट प्रैक्टिकली वो उसी को प्रेफरेंस देते हैं जिसकी एटलीस्ट सीवी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर है किसी मेडिकल कॉलेज में आप, और साथ में जो है आप लोग, आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपने रिसर्च किया, पब्लिकेशन किया हुआ है, कुछ बच्चों को आपने गाइड किया है एमडी के या एमबीबीएस के बच्चों को आपने, ना, तो उस केस में आप उस पाथवे पे जा पाओगे। अदरवाइज आपको जो इसी पाथवे पे आपको जाना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड पाथवे है। अगर आपने 2-3 साल 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है पीजी के बाद में, तो अभी आपको इस स्टैंडर्ड पाथवे पे जाना पड़ेगा। एएमसी वाले रूट पर आपको वो नहीं मिल पाएगा जो स्पेशलिस्ट पाथवे है। Okay, so chances है, but you need a very powerful CV for that, right? Yes, definitely. और रिकमेंडेशन भी बेसिकली चाहिए होती है कि ये ना, जब भी आप अप्लाई करते हो, इवन अगर आपने ना कोई फेलोशिप नहीं आप कर रहे हो, तो 2-3 डॉक्टर्स जो आपके एचओडी थे, फॉर एग्जांपल, है ना, आपने एमबीबीएस किया, आपके जो एचओडी आपके ना, और एमबीबीएस में बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं कि यहाँ पर रिसर्च मैंडेटरी है या नहीं इंडिया में, आप मस्ट 2-3 महीने का ही सही, कोई भी किसी कम्युनिटी मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से मिलके आप मस्त एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट करो और उसको पब्लिश करो किसी भी पबमेड इंडेक्स जर्नल में। वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, यूएस में भी, यूके में भी, और ऑस्ट्रेलिया में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके लिए। सो रिसर्च एक बहुत ही बड़ा वेपन होगा हमारे लिए, सर, राइट? यस यस यस। Thank you, sir, for telling about the fees, the course, the way to go to Australia, the pathway ahead for postgraduates, for general practitioners, and for settling there. Sir, मुझे जानना था कि आपका क्या मोटिवेशन था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए? Like you have been teaching since 10 years in India, in Malaysia, in Australia. You are also a clinical pharmacist. Then you also started academically.ai as a CEO. So, what was your motivation to go to Australia? क्या था कि मैं तो ऑलरेडी, मेरा एक अच्छा जॉब था मलेशिया में। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का बेसिकली, अगर हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना कि यार मेरी ऑलरेडी जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, मुझे 1.5-2 लाख रुपए मिल रहा है, मैं क्यों जाऊं बाहर, है ना। तो मेरा भी ऐसे ही हो गया था मलेशिया में, मैं भी जाना नहीं चाह रहा था, पर फिर मुझे कुछ मेरे मेंटर्स ने मुझे गाइड किया कि नहीं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ही चाहिए ना। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया वहां पे पहुंचा, फिर मैंने कुछ एक्सप्लोर करना चालू किया, और मतलब इतना ईजी प्रोसेसर लोग आ क्यों नहीं रहे, मालूम ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम था अंटिल मैं ऑस्ट्रेलिया रीच कर गया। क्योंकि और इंडिया में अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी आप फार्मेसी कॉलेज, कहीं भी आप कोई भी हेल्थ केयर कोर्स करो, तो वो लोग इंडिया में ही बताएंगे कि आप रेलवे में डॉक्टर बन जाओ, एम्स में चले जाओ, आप पीजी कर लो और ये कर लो। कोई भी आपको बाहर वाला बताता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। तो मेरे को ये मालूम नहीं था, फिर मैंने एक्सप्लोर किया, फिर बहुत ज्यादा इजी मुझे लगा। फिर मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है डॉक्टर अकरम अहमद के नाम से। वहाँ पे मैं गाइड करता हूँ सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की माइग्रेशन के लिए, कि भाई ये प्रोसेस है, आप इजीली आ सकते हो। तो मुझे भी नहीं मालूम था, और फिर मुझे मालूम, तब से मैं गाइड करता हूँ लोगों के लिए। और मेरा मोटिवेशन यही था कि आगे मुझे वहाँ पहुंचने में मुझे कम से कम 8 साल लगे ऑस्ट्रेलिया पहुंचते। ये कोई भी बंदा 6 मंथ में ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली इंडिया से पहुंच सकता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज मुझे भी नहीं मालूम था कि यार इतना इजी प्रोसेस है वहां जाने के लिए। तो ये था, तो मैंने लोगों के लिए हम गाइड करें, उनकी हेल्प करें, ऑस्ट्रेलिया में आके आप लोग प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस भी नहीं भी करें, आपको अगर वापस भी जाना है इंडिया, चले जा सकते हो आप कभी भी, एनी टाइम, है ना। और इंडिया में क्या है, यहाँ पर 10 साल का आपको एक वीजा मिलता है, OCI कार्ड मिलता है। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी ले ली, एक्सेप्ट आप इंडिया में वोट नहीं दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, बाकी सारे राइट आपके पास सिंपल सेम रहेंगे। और आपको कल को आपको यहाँ वापस आना है, आपको अपना नर्सिंग होम खोलना है, कुछ आपको अपना कॉलेज खोलना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बिजनेस करना है, आप फिर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके सारे राइट छिन जाएंगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, या आप यूएस चले जाते हो, या आप यूके चले जाते हो ना।
राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग सर. हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ पॉसिबल आई विल अरेंज अनदर इंटरव्यू विद सर सो दैट वी कैन गाइड यू इवन फर्दर इन दैट. सर का यूट्यूब चैनल है, प्लीज फॉलो हिम, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. आई एम श्योर ही विल गाइड यू देयर एज वेल. थैंक यू फॉर being here. Thank you for helping us out in this, sir. Hopefully we'll have another interview in the next few days. Yeah. देखते हैं. Thank you very much, sir.